Okay, Tsangmala Jule. So again, welcome to my channel. So today's topic is again for class 9th polynomial का रहेगा and sort of like MCQ type in such a way मैं question ऐसे डिज़ाइन किया कि थोड़ा सा आपके बेसिक भी थोड़ा बन जाए और थोड़ा पेपर के भी इसमें तैयारी हो जाए. So ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है और 3-4 दिन से हम वीडियो I mean like we have been like launching the videos uploaded. Hope you people are like enjoying the videos, especially 9th class. And then polynomial का topic देखिए please, I mean 11th and 12th please avoid watching this video. Do not waste your time in case अगर आप लोग serious preparation कर रहे होंगे तो. Start करते हैं polynomial. So this is lecture 1. I will cover like 3 lectures on polynomial. उसमें मैं polynomial लगभग मैं उसमें discuss कर लूँगा. But then again here most of the cases like मैं question सिर्फ discuss करूँगा and I'll try to like अगर उनसे कुछ link up बन रहा होगा तो I'll definitely connect it. So polynomial, I know that polynomial आपके पास क्या रहता है, इन थोड़ा सा मैं polynomial के बारे में बता देता हूँ. So polynomial सबसे पहले टॉपिक आपको पता होना चाहिए. Poly means what, many, and nomial means आपके पास क्या होता है, it is term. That is what you are supposed to be like clear with this rather than saying कि polynomial अच्छा कुछ ऐसा था वैसा था. ठीक है. So many terms वाले को हम कहते हैं polynomials. And then जैसे ये terms आएगा, you need to clear about what is term. Term is nothing but it is product of a variable and आपके पास क्या होगा, it is product of constant and आपके पास क्या होता है, constant and आपके पास constant multiplied by variable, दोनों को मिला के we call it what, a term. And then this constant is called coefficient of the variable. Is called coefficient of the variable. ठीक है सर, जिस वेरिएबल के साथ होगा उसका कोफिशिएंट होगा, दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट. पूरा पॉलिनोमियल की स्टडी हम वेरिएबल के ऊपर स्टडी करते हैं. दैट इज लाइक डिग्री, डिग्री इन द सेंस लाइक हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. ठीक है. और वो डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यानी एक्स की जो पावर होता है, इट हैज टू बी व्हाट, आपके पास क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है वी कॉल इट व्हाट, एक्सपोनेंट. वी कॉल इट एक्सपोनेंट. वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. और हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी हाईएस्ट पावर को मैं कहूंगा, हाईएस्ट पावर को मैं कहूंगा, हाईएस्ट पावर को आई कॉल इट व्हाट, इट इज डिग्री. ठीक है. और इस डिग्री के हिसाब से देन आई लाइक डिफरेंशिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक पॉलिनोमियल डिग्री के टर्म्स में. अगेन आई विल डिस्कस अबाउट दिस वन. सो हाईएस्ट पावर हो गया, डिग्री हो गया. सो एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल फॉर एनी terms to be defined as polynomial is what, आपके पास पावर हमेशा क्या होना चाहिए, it should be a whole number. It should be a whole number at any given point. अगर आपके पास whole number नहीं होगा, so you could straight away reject what, आपके पास you could straight away reject your I mean वो polynomial में qualify नहीं होगा, तो we will not further investigate that particular question. Whole number को हम दूसरा कहते हैं सर positive integer. We call it positive integer. So next time whole number means positive integer. Positive integer means आपके पास क्या होगा, whole number. चलिए. Now next is what, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपके पास ये वाला चीज रहेगा. Then आपके पास terms again of course we do have two types of terms. एक आपके पास होता है like terms, एक आपके पास होगा unlike terms. ठीक है, unlike terms. So like terms and unlike terms में difference क्या होगा सर, like terms यानी कि क्या होगा, जिसका वेरिएबल सेम होगा, साथ ही साथ वेरिएबल के साथ उसका एक्सपोनेंट यानी पावर भी सेम होना चाहिए, वी कॉल इट लाइक टर्म. अदरवाइज वेरिएबल डिफरेंट होगा, वो तो हमें देख के समझ में आ जाएगा, बट वेरिएबल सेम होगा, डिग्री डिफरेंट होगा, दैट क्वालिफाइज फॉर व्हाट, अनलाइक टर्म्स. इसका पर्पस ये होगा सर लाइक टर्म्स का, लाइक टर्म्स कैन बी ऑपरेटेड. मैथमेटिक्स में वी हैव 4 operations and out of 4 operations like plus and minus operation can be performed on like terms, and unlike terms में हम लोग क्या करते हैं, we leave it as it is. We cannot operate in the sense like we cannot add them, we cannot subtract them. Again not talking about the operation. आपके पास क्या होगा सर, multiplication. Next polynomial हम लोग 2 टाइप से स्टडी करते हैं. ठीक है, polynomial हम क्या करते हैं, 2 टाइप से हम स्टडी करते हैं, and that is आपके पास क्या होगा, दैट इज आपके पास क्या होगा, पॉलिनोमियल को 2 टाइप से स्टडी करेंगे. वो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैं जज करता हूं 2 तरीके से. एक इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, और एक आपके पास होगा नंबर ऑफ आपके पास क्या होगा, टर्म्स. सो डिग्री जब n यानी 0 होगा, वी कॉल इट व्हाट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. वी कॉल इट कांस्टेंट polynomial. Okay, when degree equals to 1, it is linear polynomial. It is linear polynomial. And degree, okay, n equals to 2, we call it quadratic polynomial. We call it quadratic polynomial. And when degree equals to 3, we call it cubic polynomial. We call it
क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड व्हेन डिग्री n इक्वल्स टू 4 होगा, इट इज बेसिकली बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक 2 टाइम्स क्वाड्रेटिक, ये सुनो बाय क्वाड्रेटिक ये रहेगा। एंड उसके आगे हमारे पास इस क्लास में लाइक रिस्ट्रिक्टेड टिल व्हाट n इक्वल टू 4, अदरवाइज हमारे पास कोई नाम जो है इसका ग्रीक वर्ड वगैरह वो सिर्फ यहां तक ही है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ठीक है। तो जब भी मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, सो आई विल रेफर टू दिस 5 चीजें, ठीक है। और इन दोनों में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे यू ऑलवेज गेट अ लाइन, और लाइन लीनियर, स्पेशली ध्यान रखना जब भी वेरिएबल का पावर अगर आपके पास क्या होगा 1 डिग्री, तो आपके पास क्या होगा, यू आर गोइंग टू गेट अ लाइन, और लीनियर से लाइन ये याद रखना। क्वाड्रेटिक में यू आर गोइंग टू गेट व्हाट पैराबोलिक शेप, यस्टरडे आई टॉक्ड अबाउट दिस इन व्हाट स्पीड डिस्टेंस ग्राफ, और आपका क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ में मैंने कहा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो हमें कर्व मिलता था दैट इज बेसिकली व्हाट आपके पास पैराबोलिक दिख रहा था। सो पैराबोलिक में उसमें सिर्फ हाफ वाला शो किया था हमने, अदरवाइज इन शेप को हम कहते हैं पैराबोलिक। और याद रखना पैराबोलिक इक्वेशन उनका डिग्री होता है हमेशा 2। क्यूबिक के केस में वी हैव 3 टर्न्स, और इसके केस में इसमें कितना होगा आपके पास 4 टर्न होगा। सो नाउ इसी डिग्री से आई डेफिनेटली कनेक्ट विथ व्हाट, अगर आपके पास डिग्री जो है 0 होगा तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस इसमें कोई नहीं होगा, ये सुनो। और नंबर ऑफ, अगर डिग्री आपके पास 1 होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस जो है पॉलिनोमियल का वो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होगा। डिग्री 2 होगा तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा, 2 होगा। डिग्री 3 होगा, नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा, 3 होगा। डिग्री 4 होगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 4 होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन वी आर taking a leap jump in this particular case, assuming that this is for the 9th class जिनका अभी अक्टूबर में एग्जाम है, तो assuming that you at least know. So degree is directly proportional to the, degree is directly proportional to the, आपके पास क्या होगा, number of zeros of the polynomial, number of zeros of the polynomial. When we say number of zeros, okay, for example मैं linear के केस में कहता हूँ, so linear के केस में zeros क्या होगा सर, अगर डिग्री 1 होगा तो 0 is something like this, okay, 0 मतलब x की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगा वो 0 होगा। सो अगर जैसे ये कट किया, सो सपोज दिस इज योर पॉलिनोमियल जिसको ग्राफ में अगर मैं प्लॉट करने पर वी गेट समथिंग लाइक दिस। सो लीनियर के केस में एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही जगह पे कट होगा, दैट इज व्हाई वी सेड नंबर ऑफ जीरो जिसका 1 है। और क्वाड्रेटिक के केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक के केस में बिकॉज इट विल टेक अ टर्न, तो यहाँ पे डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी यहाँ पे कितना होना चाहिए, इट शुड बी 2, दैट मीन्स एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। सर क्वाड्रेटिक के केस में एक आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, यस और नो। और इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, 11th क्लास में पैराबोला के रूप में, फंक्शन के रूप में। सो दिस टॉपिक इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अंडरस्टैंडिंग द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड द नेचर ऑफ जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है, वो आपके पास रिलेशन अभी अगर अच्छा करेंगे तो in future you will be like able to understand, I mean 11th class more comprehensively. चलिए ये हो गया डिग्रीज एंड जीरोस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एंड देन नाउ पॉलिनोमियल इज टू बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एक ही टर्म गिवन होगा वी कॉल इट व्हाट, मोनोमियल, ठीक है सर, मोनोमियल। सो द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग मोनो मींस वन, नोमियल मींस टर्म, वन टर्म वाले को हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म मोनोमियल। इन टर्म्स ऑफ अगर आपके पास 2 टर्म होगा वी कॉल इट व्हाट, बाय, बाय मींस 2, नोमियल मींस आपके पास क्या होगा, टर्म, सो दिस इज बायनोमियल। एंड देन अगर आपके पास 3 टर्म होगा यू कॉल इट व्हाट, ट्राइनोमियल। एंड बाकी उसके आगे जो है वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट पॉलिनोमियल, है ना, जिसमें बहुत सारे आपके पास टर्म होगा। दिस इज हाउ वी स्टडी अबाउट दिस। चलिए नाउ आई विल नॉट जनरलाइज द पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसे टाइम पे। सो स्ट्रेट अवे आते हैं क्वेश्चंस पे। सो इन केस कोई डाउट्स होगा प्लीज डू लेट मी नो अबाउट योर दिस वन, ओके। कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज मुझे बताना है, ठीक है, और वो कमेंट सेक्शन में। एंड देन अगेन दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे, जब बच्चे वहाँ से सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। 2-3 बच्चे हैव स्टार्टेड लाइक रेगुलरली वॉचिंग माय वीडियोस, सो जब कोई देखता है तो आई फील लाइक वर्थ ऑफ अटेम्प्टिंग, आई मीन लाइक शेयरिंग द वीडियो फ्रॉम हियर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फॉर अ पॉलिनोमियल दिस वन राइट दी, हमारे पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है सर। हमारे पास कितने क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन का पार्ट 5 क्वेश्चन है, हम सब हर क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर देंगे। नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले डिग्री देखते हैं। डिग्री से पहले लेट अस रिफाइन दिस पॉलिनोमियल, यस और नो। तो पॉलिनोमियल को रिफाइन करते हैं, लेट अस से दिस इज
पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू, आपके पास यहाँ क्या है, अपॉन x है, कोफिशिएंट्स को सेपरेट करके लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री लिखो, पावर ऑफ द x आपके पास क्या है, वेरिएबल, सो x स्क्वायर अपॉन आई कैन राइट 5 प्लस 2x अपॉन आपके पास क्या होगा 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन आपके पास 2x स्क्वायर माइनस x टू द पावर क्या है 6, ठीक है। सो वेन एवर वी राइट दी पॉलिनोमियल, उसका एक जनरल अप्रोच रहता है कि लाइक वी राइट दिस इन व्हाट, आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल। सो सबसे बड़ा यहाँ पे डिग्री क्या है, इट इज 6। सो बेटर आई विल राइट लाइक दिस वन। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो यू कैन स्किप दिस, अगर इन केस पेपर में ऐसे एमसीक्यू टाइप पूछा हुआ है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ। सो दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग डिविजन मेथड। एक्स की पावर 6, देन आपके पास क्या है, सॉरी दिस इज एक्स क्यूब है ना, फिर आपके पास आएगा क्यूब वाला प्लस एक्स क्यूब अपॉन आपके पास क्या है 5 प्लस 2 अपॉन 5 इंटू आई राइट व्हाट, एक्स क्यूब के बाद देन आई राइट ओके इट इज माइनस, सॉरी है ना, माइनस 7 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन 5 एक्स प्लस आपके पास क्या है 1 अपॉन 5। वी आर डन विद दिस, वी हैव डन द रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स, वी हैव रिटन, वी हैव गिवन प्रेफरेंस टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल। जैसे मैंने ये लिखा ना, आप ये कह रहा है सर द डिग्री, व्हाट इज राइट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ऑल्दो वी हैव डिफरेंट, हमारे पास पावर बहुत है वेरिएबल्स की, बट उनमें सबसे बड़ा वाले पावर को हम कहते हैं डिग्री। सो सबसे बड़ा पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है, इट इज 6। सो डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इट इज व्हाट 6। डिग्री 6 होगा, दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 6, नंबर ऑफ जीरो 6 होगा। सो द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज दैट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सर, इट विल कट एक्स एक्सिस एट कितने नंबर ऑफ पॉइंट, 6 नंबर ऑफ पॉइंट, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 ऐसे करके। तो ये एक पॉइंट कट किया, ये पॉइंट कट किया, ये कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट इज गॉन। सेकेंड आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब मैंने पहले कहा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वेरिएबल देखो, टर्म जो होता है दैट इज व्हाट, टर्म जो होता है इट इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। तो जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होगा वो उसका रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 कितना होगा, इट इज -1, जो इसके सामने जो नंबर मल्टीप्लाइड है, ऑफ कोर्स यू हैव टू कंसीडर नेगेटिव वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर कहूं तो इसके सामने कितना, इट इज 1/5, तो 1/5 इज द कोफिशिएंट ऑफ आपके पास क्या है 1/5 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, जो हमारे पास यहाँ क्या रहेगा, दिस इज द आंसर जो यहाँ पूछा हुआ था। अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैं पूछूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा इट इज -7/2, दिस इज व्हाट यू आर डन विद। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है इट इज व्हाट 2/5, और मैं कहूं व्हाट इज योर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में डिग्री 0 रहता है, यस और नो, नो अपीयरेंस ऑफ द वेरिएबल बिकॉज एक्स टू द पावर 0 होता है यहाँ पे, ठीक है, एक्स टू द पावर 0 रहता है, तो एनीथिंग यानी एनी पॉजिटिव वैल्यू जिसका पावर अगर 0 होगा उसकी वैल्यू जो है वो कितना होता है, इट इज 1। सो लिखूं या ना लिखूं, इट इज लाइक मिसनॉमर स्टेटमेंट इफ आई से इट इज नॉट मेंशन देयर। सो कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट के टर्म में क्या रहेगा, कांस्टेंट इज 1/5। सो दिस आर द रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट, कोई भी पूछ सकता है, यू कैन नाउ आंसर, ठीक है, जब भी कोफिशिएंट पूछेगा तो दिस इज कांस्टेंट। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 6, अरे यार अभी पूरा लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 6 इट इज -1, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 8। जब मैं कह रहा हूं दिस इज द पॉलिनोमियल विद डिग्री 6, डिग्री 6 जब मैंने कहा डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, इस पूरे पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होगा 6 और उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा 6, तो 6 से आगे तो हो ही नहीं सकता। और ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8, यार उसके आगे जितने भी आपके पास होगा एक्स टू द पावर 7, एक्स टू द पावर 8, एक्स टू द पावर कितना होगा 9 एंड सो ऑन, इनका कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, इनका कोफिशिएंट हमेशा 0 होगा। इन केस एनी टर्म्स विच इज बियॉन्ड द डिग्री, ठीक है, जिसका भी एक्सपोनेंट अगर बियॉन्ड द डिग्री होगा उनका कोफिशिएंट हमेशा 0 होगा बिकॉज दोस टर्म्स आर नॉट प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 8 इज नथिंग बट इट इज 0। नाउ द कांस्टेंट टर्म, ऑफ कोर्स कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इट इज 1/5, 1/5 इज योर कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा देन कांस्टेंट टर्म जब मैं कहता हूं, फिर हम कहते हैं सर अगर टर्म कांस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट है तो हाउ कम कांस्टेंट टर्म यानी कि 1/5 इज अ टर्म, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। यहां देखो
पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, तो n से लेके वो 0 तक जा सकता है। सो x टू द पावर अगर मैं 0 लिख दूं तो कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे पावर 0 इसलिए वो x यहाँ पे विजिबल नहीं है। इनकेस अगर मैं कहूँ 1/5 x टू द पावर -1, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? ये फिर मैं कहूँगा सर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इज गॉन। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अगेन वेरी सिंपल। जिनको समझ में आता है ये सुनो, और जिनकी तैयारी अगर अभी अच्छा होगा नहीं होगा तो लेट्स डिस्कस। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इट इज सेइंग व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अरे यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी मुझे डाउट होता है कि मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, बट एज्यूमिंग दैट पुटिंग माई सेल्फ इन टू यूर शूज 9th क्लास के लेवल पे, यस, ठीक है, कुछ बच्चों के लिए ये चैलेंजिंग भी हो सकता है। ओके, नाउ सी, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड करना है। सो इफ आई फोकस हियर, सो सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं, अच्छा ये पॉलिनोमियल कौन सा होगा? सो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, तो फिर आपके पास दो चीज आएगा, इन टर्म्स ऑफ डिग्री या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सो इन टर्म्स ऑफ डिग्री इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज इसका जो डिग्री है n इक्वल्स टू इट इज 2, डिग्री 2 होगा, तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 1 2 3 टर्म्स आपके पास है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट? ट्राइनोमियल, बिकॉज यहाँ पे 3 टर्म्स है। अच्छा अगेन यहां मैं एक चीज लिखता हूं, 2x प्लस 5x। बच्चों से मैं पूछूंगा ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्री क्या है? सर डिग्री तो मुझे समझ में आ गया, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इट इज व्हाट? वो 1 है। सो देयरफॉर इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को कहूंगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आपके पास टर्म्स, सो मेनी ऑफ यू विल 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप कहोगे इसको ये बाइनोमियल है। ये सुनो, क्योंकि यहां दो टर्म दिख रहा है, विच इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने कहा था टर्म्स, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कैन बी एडिड, सो 2x प्लस 5x, apparently it seems like there are two terms, but actually on resolving this, because we can operate them, it is actually what? It is 7x, so therefore it is not a binomial, it is मोनोमियल। ठीक है, डिग्री में कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज जो डिग्री हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा है यू सिंपली जॉट इट डाउन, और अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, स्पेशली यू विल लुक एट द डिग्रीज एंड द वेरिएबल। सेम होगा, यू ऑपरेट इट, मार्च देम टुगेदर एंड देन उसके बाद आंसर अपना देना है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है डिग्री 2 आ गया यहाँ पे, मोनोमियल सॉरी ट्राइनोमियल हो गया, इट इज क्वाड्रेटिक हो गया। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में x स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट है? इट इज 1। सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज, कोफिशिएंट ऑफ आपके पास x स्क्वायर है वो कितना होगा? इट इज 1। सिमिलरली अगर मैं कहूं कोफिशिएंट ऑफ इसी टर्म में, इसी क्वेश्चन में x की कोफिशिएंट बताऊं तो इट इज व्हाट? इट इज π/6, एंड आपके पास यहां पे जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म दैट इज व्हाट? इट इज -1। सो ये तीनों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं आपके पास सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? p of x equals to you are having something like 3x minus 5। अच्छा, इसका बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। भाई यहाँ कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे इट इज पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, डिग्री 2 का तो सवाल ही नहीं होगा, बिकॉज डिग्री 1 मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री 2 कह रहा है भाई डिग्री 2 या 2 से आगे x क्यूब होगा, x4 होगा, इनका हमेशा कोफिशिएंट कितना होता है? 0 होता है। सो इस केस में कोफिशिएंट इज 0, इस केस में कोफिशिएंट 1, और इसके बाद यहां पे देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछा हुआ था। सो यू नो दैट जब मैं इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करता हूं, थर्ड क्वेश्चन, p ऑफ x इक्वल टू इट इज x माइनस 1, आपके पास क्या है? 3x माइनस 1। ये फैक्टर फॉर्म में गिवन है। फैक्टर फॉर्म को पहले लेट अस पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं यूजिंग व्हाट? मल्टीप्लिकेशन, या आप आइडेंटिटी खैर यहाँ पे लगेगा नहीं। सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस वन, x इंटू 3x कितना हो जाएगा? इट इज 3x स्क्वायर, ओके, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 3x होगा, प्लस 4 रहेगा, ओके। देन यू शफल दिस अप, आगे निकल, तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? हम कहेंगे सर यहाँ 3 से ज्यादा टर्म है, यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो अगेन वी आर डूइंग अ मिस्टेक, दैट इज व्हाट? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स में हमने ध्यान नहीं दिया था। -4x एंड -3x, दिस आर लाइक टर्म्स, कैन बी ऑपरेटेड, देयरफॉर 3x स्क्वायर -7x प्लस 4 इज एक्चुअली द पॉलिनोमियल
इसके फैक्टर फॉर्म में ये था और मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास ये रहेगा. सो दिस इज ट्राइनोमियल एंड डिग्री इसका 2, तो इट इज क्वाड्रेटिक. अब हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है. अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा, 3 इज योर आंसर. ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा, इट इज -7 एंड कांस्टेंट टर्म इज 4. दिस इज व्हाट द सॉरी अबाउट दिस वन. डन. नेक्स्ट, वैसे भी अगर मैं मान लो एमसीक्यू टाइप या कोई ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहा होता तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, एक्स एंड एक्स मल्टीप्लाई करो. ये सुनो, यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है 3x है, इनको मल्टीप्लाई करने पर 3x स्क्वायर होगा तो इसका कोफिशिएंट यही होगा. तो इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग पूरा टाइम, है ना, अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनता है तो सिमिलरली अगर मैं कहूँ यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के यहाँ पूछा हुआ है, सो फर्स्ट वी नीड टू लाइक सिंप्लीफाई दिस वन. पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 2x - 5 एंड इट इज व्हाट, आपके पास है 2x स्क्वायर -3x + 1 ये गिवन है. ओके, मल्टीप्लाई कर लो 2x. चलो ठीक है, मैं बच्चों के लिए ये कर लेता हूँ, पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ. सो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज कभी कभी किसी को मुश्किल लग सकता है ये. यू सिंपली डिस्ट्रीब्यूट दिस वन, 2x को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करो, -5 को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करो, देन यू अगेन मल्टीप्लाई. सो दिस इज 4x³ -6x स्क्वायर प्लस 2x. सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है. अब इसकी बारी है -5 × 2, इट इज व्हाट 10x स्क्वायर माइनस प्लस 5 3 15x -5 हो जाएगा. ओके, जैसे ये देखा, नाउ स्टार्ट क्लबिंग द लाइक टर्म्स. x³ है और कोई नहीं है, सो इट इज एन अनलाइक टर्म, सो विल रिमेन एज इट इज. x स्क्वायर यहाँ पे है, x स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस इट इज 16x स्क्वायर -16x स्क्वायर प्लस एंड दिस इट इज व्हाट 17x and it is what -5. So this is the final shape of the polynomial. ये आपने सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया. Now in this case polynomial का डिग्री है 3, we call it cubic polynomial. In terms of number of terms it is what 1 2 3 4 3 तक आपके पास क्यूबिक रहता है, देन आप क्या कहते हो, इट इज पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ टर्म. यहाँ पे 4 टर्म्स है. सो नाउ डिग्री ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 4. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो यहां पूछा हुआ है दैट इज आपके पास क्या होगा, -16. प्लीज डू नॉट इग्नोर द नेगेटिव साइन हियर, ठीक है. यहां कोफिशिएंट ऑफ x इज 17 एंड कांस्टेंट टर्म इट इज व्हाट -5, दैट इज 8. क्वेश्चन नंबर 2b बहुत ही आसान तरीके से हो गया. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, अगेन द सेम थिंग. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. आपने जीरोस फाइंड करना है. नाउ अगेन सबसे पहले करना क्या सर, जीरो फाइंड करने के लिए व्हाट यू नीड टू नो इज जीरो होता क्या चीज है, ठीक है, और जीरो का डिग्री से क्या रिलेशन है. मैंने पहले ही कहा जीरो, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, आपके पास क्या रहता है, डिग्री, है ना. जितना बड़ा डिग्री होगा उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा, ये रहेगा, ठीक है. ओके, नाउ सी इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं. f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, इट इज x -5 सॉरी. तो इट इज बाइनोमियल, 2 टर्म्स है, डिग्री इतना 1, लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्या करना है हमें, फाइंड द जीरोस फाइंड करना है. जीरोस फाइंड करना है मतलब इसकी ग्राफ अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो इसका जो डिग्री है, डिग्री कितना है, डिग्री इट इज 1, हाईएस्ट पावर 1 है. सो डिग्री 1 है तो इसका जीरो भी 1 ही होगा. इन द सेंस जब मैं ग्राफ पे इसको प्लॉट करता हूं, सो f ऑफ x दिस इज नथिंग बट इट इज बेसिकली y इक्वल टू x -5. सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो आपका चैप्टर था उसका एप्लीकेशन यहां पे दिखेगा. सो इफ आई पुट, या मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, लीनियर है तो हमेशा लाइन मिलेगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूं, x 0 करता हूं, y देखो कितना आ रहा है, y 0 करो, x कितना आ रहा है, देखो लाइन को ज्वाइन करो, डेफिनेटली इट विल इंटरसेक्ट समथिंग लाइक दिस. या ऐसे होगा या आपके पास क्या होगा, इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे होगा ग्राफ, है ना. तो लाइन x एक्सिस पे सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा. दिस इज व्हाट लाइक द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, है ना, दैट वी कैन गिव मीनिंग टू ज्योमेट्रिकली. अब यहां पे मैं देखता हूं जीरोस मतलब जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज व्हाट इट इज गिवन व्हेन f ऑफ x इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए, 0, या p ऑफ x इक्वल टू 0. तो f ऑफ x इज नथिंग बट इट इज व्हाट x -5 इक्वल्स टू 0 होगा. सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, इट इज 5, साइड चेंज साइन चेंज, यानी कि x इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x. क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 5 पुट करने पर ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x जो है वो 0 हो जाएगा. दैट मीन्स
x इक्वल टू 5 यहां पे होगा एंड y जो है आपका 0 आया, दिस इज व्हाट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 5,0 पॉइंट ये होगा। बाकी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगा, यस पॉलिनोमियल के आपके पास इनफाइनाइट वैल्यू होगा बिकॉज एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स इट्स वैल्यू। ये सुनो, इन वैल्यूज में से आपके पास सिर्फ एक जीरो होगा। सो द क्वेश्चन नेचुरली अराइजेस, ऑल वैल्यूज आर जीरो, ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। All zeros are values of polynomial, true or false? Yes, it is true. So please make a note of this one. जो मैं अभी कह रहा हूँ, again very important. ठीक है, तो आपके पास ये रहेगा। सो अगर मैं कहता हूँ सर x इक्वल टू, मैं अगर 1 पुट कर लेता हूँ तो f ऑफ 1 कितना होगा? f ऑफ 1 कितना होगा? 1 माइनस 5 इट इज इक्वल टू -4, यानी x 1 पे y की जो वैल्यू है -4 होगा। ये भी एक पॉइंट होगा आपके पास, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन सब पॉइंट्स को यानी x की वैल्यू पुट करने पर जो y आता है वी कॉल इट वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, और जहां पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल यानी y 0 होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो एक ही जीरो, दैट इज x इक्वल टू 5 इन दिस केस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास क्या है? f ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट वी हैव हियर इज g ऑफ x है। सो इट डजंट मेक सेंस कि भाई p ऑफ x ही हमेशा लिखा जाएगा। सो कभी h ऑफ x लिखता है, कभी f ऑफ x लिखता है, कभी p ऑफ x लिखता है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। दिस आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट? पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज इसका कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दैट इज द पावर ऑफ द वेरिएबल, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। सो मैं कह रहा हूं इसका जीरोस निकलना है। सो अगेन वी नो दैट g ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए। g ऑफ x यानी कि ये बेसिकली ये जो है ना, ये और ये दिस आर नथिंग बट इट इज द y एक्सिस, दैट्स इट। तो y एक्सिस जीरो कहां पे होगा? y एक्सिस जीरो आपके पूरा x एक्सिस पे जीरो होगा, एंड दैट इज व्हाई वी से अगेन एंड अगेन जीरोस मींस x एक्सिस पे कितना कट करेगा। सो जब ग्राफ x एक्सिस पे टच होगा वहीं पे तो y जीरो होगा, यही इसका मतलब है। सो नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, अगेन डिग्री हमारे पास कितना है? इट इज 1। तो मुझे पता है यहाँ जीरो एक ही होगा, x एक्सिस पे एक ही जगह कट करेगा ये, यस और नो? सो निकालते हैं इसको। सो दिस इज नथिंग बट g ऑफ x इज 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बीच में इक्वल टू होगा तो प्लीज मेंशन लेफ्ट साइड में और कॉमा, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। सो इक्वल टू -5, देयरफॉर x इक्वल्स टू -5 अपॉन 2 इज द जीरो। जीरो ये है, x इक्वल टू -5/2, उस पे p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल आपका जीरो हो रहा है। सो तो जीरो क्या होगा? x इक्वल टू दिस, इस वैल्यू पे ये जीरो हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास अगेन क्वेश्चन, सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या रहेगा आपके पास? h ऑफ x इक्वल टू 2x। h ऑफ x इक्वल्स टू अगर 2x है तो इसका जीरो निकालना है, तो दैट मीन्स व्हाट? h ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए। h ऑफ x इज 2x इक्वल टू 0 होगा, और कॉमा ऑफ कोर्स कंटिन्यू रहेगा। सो x इक्वल टू कितना होगा? 0। सो x इक्वल टू 0 पुट करने पर आपके पास क्या रहेगा? x इक्वल टू 0 पुट करने पर आपके पास क्या होगा? इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि इसकी ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये क्या रहेगा सर? x 0 आ रहा है जब मैंने y को 0 किया है ना, जब y को 0 किया। सो द पॉइंट इज 0,0 विच इज नथिंग बट इट इज द ओरिजिन। ये ग्राफ जो है इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आपके पास क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आपके पास है? दैट इज p of x इक्वल टू, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। p of x इक्वल टू मैं कह रहा हूं ax, है ना, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। इफ यू पे अटेंशन टू योर बुक अगेन, एक बार फिर से थोड़ा रिकेप कर लेना। जब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो व्हेन आई से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू, जनरलाइज हम ऐसे करते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हमने कहा कि जो ये कांस्टेंट टर्म है कोफिशिएंट दे बिलोंग्स टू द रियल नंबर। एक चीज आप नोटिस करना, इसमें भी a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो क्यूबिक के केस में उसका a 0 नहीं होगा, वो यहां पे लिखना जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ए बी सी रियल नंबर है, यस और नो? और रियल नंबर में आपके पास क्या होता है सर? माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट की वैल्यू रहता है, उनमें से एक जीरो भी होगा। इन केस अगर a 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। हमने बात किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, and if it happens to be like a equal to 0, this equation, this polynomial reduces to what? bx plus c, because ये a 0 हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की, हो जाएगा ये, it will reduce to linear। so as to retain the nature of the quadratic, we are putting this condition, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास यहां पे जो ये कंडीशन है p of x इक्वल टू ax कॉमा a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए लिखा है वी आर रिटेनिंग द लीनियर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। है सुनो, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं a इज नॉट इक्वल टू 0
तब यू कुड डिबेट दिस क्वेश्चन इन केस इफ इट कम्स इन द एग्जामिनेशन. सो पेपर में इस टाइप की गलती कभी भी नहीं होगा, अदरवाइज वी कैन रेज एन ऑब्जेक्शन. सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, अगेन यार जीरो चाहिए तो मतलब पी ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, वाई वो जीरो होना चाहिए, वाई जीरो है ना, तो ए एक्स है इसके बराबर जीरो होगा, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज जीरो. अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, एक्स इक्वल टू सर जीरो अपॉन ए कर लो, ए जीरो नहीं है, ठीक है. सो देयर फॉर फाइनाइट वैल्यू अपॉन जीरो अपॉन फाइनाइट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे ऑफकोर्स और कमा आएगा, और कमा, दिस इज योर आंसर. सो एक्स इक्वल टू जीरो इज द जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो इज द जीरो. सो इस टाइप के ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जीरो कैन बी द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू, यू कैन जस्टिफाई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर पॉलिनोमियल टुडे, ठीक है. सो अगेन थोड़ा सा टाइम अभी क्योंकि लाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, सो 11th एंड 12th यार 11th थोड़ा सा अभी क्या है डिले करना पड़ रहा है, बिकॉज लाइक टाइम रियली इज वेरी वेरी कंस्ट्रेंट विद मी. ओके, ऑल्दो लाइक लिमिटेड बैच हैव लाइक बिगन हियर, बट मेरे पास जो वर्कलोड है अपार्ट फ्रॉम लाइक जो क्लरिकल जो जॉब है, दैट इज लाइक आई मीन एवर लास्टिंग. सो उस टाइम उन चीज़ों में थोड़ा सा मेरा टाइम जा रहा है, बट एज एंड व्हेन चीज़ें जब सेटल डाउन हो जाएगा, सो आई डेफिनेटली स्टार्ट, क्योंकि 11th एंड 12th आई विल नॉट टेक द वे आई एम टेकिंग क्लास 9th एंड 10th. ओके, वहाँ सिलेबस मुझे पता है. एंड देन अगेन देहरादून में जिन बच्चों का एनडीए हो गया यार, कभी बात नहीं किया, आपका मैसेज आया था, सो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस एनडीए रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए, एंड यू गाइस एक्चुअली डिजर्व इट, यू गाइस एक्चुअली डिजर्व इट. थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखो, आई नो दैट यू कैन इजीली मेक योर लाइक एसएसबी ऑल्सो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the last question in fact, okay, and it is very good question. So f of x equal to, if no not f of x, if ये कह रहा है if okay, पहले question पढ़ लो. If x equal to 2 and x equal to 0 are the zeros of the polynomial this one, find the value of a and b. Find the value of a and b. So हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए the best method is that कि सर x equal to क्या आपके पास x इक्वल टू 2 एंड आपके पास ओके x इक्वल टू 2 एंड आपके पास क्या है x इक्वल टू 0. दिस आर टू zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एंड द पॉलिनोमियल इज f ऑफ x इक्वल्स टू दिस 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस कितना ax प्लस b. अच्छा पहले इसको ट्रेस कर लेते हैं. इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज 3. अगर डिग्री 3 होगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3. आउट ऑफ 3 जीरोस वी आर गिवन ओनली 2 जीरोस. और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा जाए, चलो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूं मैं, इसके 3 जीरोस होगा मतलब द ग्राफ विल डेफिनेटली टच एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट. 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, है ना, ये ऐसे टच होगा. बट इट इज नॉट नेसेसरी ग्राफ ऐसे ही होगा, यहां पे भी टच हो सकता है. और या ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, भाई ऊपर से आ रहा हो ऐसे जा रहा हो, और ये इसको क्या एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा, बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस हैज टू बी व्हाट 3, बिकॉज द डिग्री इज 3. इस टाइप के दो आपके पास ग्राफ होंगे. सो लुकिंग एट दिस वन, मुझे ये पता चल रहा है x इक्वल टू 0 पे इसका क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0 इस कहाँ पे आएगा आपके पास, इसकी ग्राफ अगर मैं पार्शियली देखा जाए तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा. एक तो यहाँ से जा रहा है और एक आपके पास यहाँ से जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट, इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे हो सकता है, ये सुनो, या आपके पास ऐसा ग्राफ हो सकता है, 0 ये है आपके पास और ये आपके पास 2 है, तो ये ऐसे करके यूं करके ऐसे भी तो जा सकता है. बट ये चीज कंफर्म है 0 एंड 2 इसका 2 जीरो से एक और पॉइंट होगा इसका, वो ए एंड बी हम फाइंड करते हैं. उसके बाद हम थर्ड भी, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन डिटरमाइन इट. आई अगेन टेल यू द स्टेप्स हाउ टू एक्चुअली डिटरमाइन द जीरोस, है ना. जब क्यूबिक या उससे ज्यादा होगा, क्वाड्रेटिक के केस में तो वेरी सिंपल, हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे. Now we know that अगर x equal to 2 and x equal to 0, now I'm coming back to this question, अगर x equal to 2 and x equal to 0 इसका एक 0 है, that means if x equal to 2 is zeros of, है ना, 0 of f of x, then f of 2 पुट करने पर ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. बट मुझे पता है f of x इक्वल टू दिस, है ना, तो जहां जहां पे 2 है, f of x की जगह पे 2 है, x को 2 से रिप्लेस कर दो, वी गेट दिस वन. सो दिस इज 2 इंटू क्या होगा, 2 की पावर आपके पास x क्यूब होगा, माइनस 5 इंटू आपके पास क्या होगा, 2 की पावर 2 होगा, प्लस 2 इंटू a होगा प्लस b होगा इक्वल्स टू 0. लेट अस फर्स्ट रिजॉल्व दिस वन. 2 इंटू 2 की पावर 3, इट इज क्यूब,
और ये कितना होगा 8 इंटू 2 इट इज 16, अगेन 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 8 इंटू 2 16 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 2 4, 5 4 जा इट इज 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, साइड में ऑफ कोर्स वी हैव और कॉमा, है ना, और कॉमा रहेगा यहाँ पे, दिस आर लाइक टर्म्स कैन बी एडिड, सो यहाँ पे क्या होगा -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2a प्लस b इक्वल्स टू कितना आएगा, साइड चेंज साइन चेंज रूल इज एप्लीकेबल हियर, ये एक इक्वेशन आ गया, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, आपने नोटबुक में फिर इसके बाद लिखना है, अनलाइक मी मैं लेफ्ट एंड राइट पे लिख रहा हूँ, नोटबुक में थॉरोली एक आंसर जाना चाहिए। सेकेंडली आपके पास इफ, अगेन सेम लैंग्वेज आई राइट, ओके सेम, इफ x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ दिस f ऑफ x, ठीक है, देन f ऑफ 0 भी तो वो 0 कर देगा y को, देन अगेन आप x की जगह पे यहाँ 0 को रिप्लेस कर देंगे, दैट मीन्स व्हाट 2 इंटू 0 की पावर क्यूब माइनस 5 इंटू 0 की पावर इट इज व्हाट 2 प्लस a इंटू इट इज 0 प्लस आपके पास क्या है b इक्वल्स टू 0, सो आई पुट और कॉमा हियर, 2 इंटू 0 मीन्स 0, 5 इंटू 0 मीन्स 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, a इंटू 0 इज 0, b की वैल्यू कितना आया 0, सो b की वैल्यू आ गया, जो आंसर आ गया उसको बॉक्स में डाल दूंगा, दिस इज ऑफ कोर्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 था बट मुझे आंसर मिल गया, सो b इक्वल टू 0 0 आ गया आंसर, एंड दिस पुट b equal to 0 in equation 1 we have 2a plus 0 equals to 4, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया इक्वेशन नंबर 1, सो 2a equals to 4 means a equals to कितना होगा 2, दैट इज योर आंसर, सो a एंड b का जो वैल्यू है वो कितना आया 0, सो 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन डन, try to connect with the like left and right part of the question. Now the thing is that 0 से factor में, which is what like in the next lecture I'll definitely discuss, वो क्या होता है मैं बताता हूँ। See, अगर आपके पास ये वाला पार्ट है ना, x equal to 2, suppose a and b की वैल्यू हमने निकाल दिया, तो f of x जो पॉलिनोमियल है वो कितना आया 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस इट इज 2x, b की वैल्यू 0 था, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक के केस में हम मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करते थे, इन केस क्वेश्चन हैपेंस टू बी लाइक दिस, तो देखो x इक्वल टू 2 अगर इसका क्या है 0 है, तो x माइनस 2 इसका क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, इफ x इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ f ऑफ x या पॉलिनोमियल x, तो x माइनस 2 को इस साइड ले जाओ, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ आपके पास क्या होगा f ऑफ x, और जब मैं कहता हूं x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस वन, दैट मीन्स इट विल परफेक्टली डिवाइड दिस वन, यस और नो, तो हमें इससे क्या मिलेगा, अगर इसको परफेक्टली डिवाइड होगा, सो दैट मीन्स आपके पास क्या होगा यार, देखो नंबर ऑफ जीरोस इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो अगेन आई विल डिस्कस इट इन डिटेल टुमारो, ओके क्वेश्चन, अगर ये इससे फैक्टर होगा दैट मीन्स 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x को मैं किससे करता हूँ, x माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ, सो दिस विल हेल्प यू टू फैक्टराइज दिस क्वेश्चन, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, विल डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टुमारो, लॉन्ग डिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम, और आपके पास क्या है how to factorize the things, okay, so thank you so much, I will discuss this in the next topic, in case if you like, enjoy the video, please do let me know in the comment section. And please do not forget to like, share and comment, okay, so every time I see new members being added to my family, it really feels very nice and it encourages me also. Thank you so much.